with each 99 in maths and physics. Sir has qualified for KVPY scholarship in 2008, first among 110 nations, and won several accolades in different Olympiads like National Science Olympiad, All India Rank 25, NSTSC All India Rank 6, National Cyber Olympiad All India Rank 13, International Maths Olympiad All India Rank 28, and many more. Sir has completed BTech and MTech dual degree from Indian Institute of Technology IIT Kanpur in session 2009 to 2014 with a CGPA of 9.4 out of 10 CGPA in BTech and 10 out of 10 CGPA in MTech, and was second in the institute rank. Before serving as an IAS officer, Sir has worked as investment banker for more than 4 years from 2014 to 2018 in Mumbai for India and London Duchess Bank, and was awarded with Best Employee Award, Green Flag Awards, and many more. Sir is a CFA charter holder, all three levels qualified in the first attempt from 2018 itself. A young IAS officer with All India rank 61 in UPSC 2017, and in the same year All India rank 49 in the RBI Grade B exam 2017 while he was working 24 into 7. Sir has been awarded Director's Gold Medal in the Academy for the Best Student Trainee in Foundation course in Lavasna Academy 2018 while training वीडियो ऑन for करना his था academics and for his curriculum. Sir was awarded as the second best IAS officer trainee for the whole professional course for 2 years. Sir has completed his probation period in Gumla for the session 2019-20, and right now Honorable Manish Kumar Sir is serving our Kodarma district as SDM Kodarma for 2021. It was a brief introduction about Sir. Now I would request our director sirs to present the digital bouquet to the resource person for today's seminar. I would request Kumar Rajiv sir. Mr. Abhijit, can we ask our directors sirs to make their video on if they are here? Yes sir. Avinash, Yes sir. right. Avinash sir is there, and now can we have Manish sir here? आज के इस सेशन में आपका स्वागत है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। Manish sir, you are here. SDO sir, you are here. Yes, sir. Manish sir is there, sir. Right, sir. Right, sir. Right. Now I would request our Honorable CEO sir, Prakash Gupta sir, for the welcome speech. Thank you, Abhijit. Honorable Resource Person, Mr. Manish Kumar, SDM Sir, Kodarma. Esteemed Directors Duo, Mr. Manish Kapsame and Mr. Avinash Seth. Dignified Principals, Dr. Sanjita, Grizzly College of Education, and Mrs. Nirja, Grizzly Public School, Jhumritalaya. Dear teachers and my lovely students, good afternoon to everyone present in this session. It's a privilege to all of us that today SDM Sir is present over here as the resource person of the session, whom we know as somebody for whom life is about giving the best. Friends, it is the time of pandemic. In the time of pandemic, when the students have been away from the school for a long time, it is really going to be highly fruitful to have such kind of session and to interact with Sir, which will certainly guide the students to build a roadmap for their career and for the subject choices for the future course of action. It is known to all of us that there have been thousands of students all around who make the wrong choice regarding their career and the subject selection
and because of that, they are stuck. I hope and we believe that when the session is over, all the students present in this session will have a clear picture regarding their subject choices and the career that will certainly help them in the long run. Finally, I welcome again SDM sir and all the dignitaries present in this session. Thank you, and over to Abhijit. Thank you, sir. Now, with the permission of our Honorable SDM, sir, can we start the session? Thank you, Abhijit ji. So I think it has already got delayed, and I'm extremely sorry to all the students. So thanks to Avinash ji, thanks to Manish ji, thanks to Dr. Sangeeta, thanks to Nirja ji. A special thanks to Prakash ji for such motivating words even before the session started, and he has set really high grounds for me to actually give a very nice session for next 30 odd minutes. And I think Abhijit ji has been so kind to introduce me in such a lavish manner. The real introduction must not be of the person, but of the hard work that the person has put in for the entire career. So I'll be putting and keeping this channel, this session bilingual, both English and Hindi. So first of all, I must apologize to all my dear students. So मैं बहुत sorry हूँ. I have a habit of making it on time, लेकिन आज there were some urgent work due to which I had to move to Domchand, and as soon as I came back, I am here with all of you. So this is very difficult time जिसमें हम लोग ये session ले रहे हैं. Otherwise, I generally prefer the offline mode. ठीक आज से 7-8 महीने पहले हमारा भी फेस 2 चल रहा था, एंड वी यूज्ड टू प्ले विद अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड्स. मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चों ने अपने बैकग्राउंड चेंज किए हुए हैं गूगल मीट पे. वी यूज्ड टू बी इन सोलर सिस्टम, कोई कोई कहीं कहीं पे रहता था. तो आई वांट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझे दिख रहे हैं लाइक शुभम, चांदनी, एक बार आप अच्छे से स्माइल कीजिए. आई थिंक स्माइल इज समथिंग विच वी मस्ट ऑल हैव. तो काफी सीरियस है बच्चे, एंड दैट इज समथिंग विच वी डोंट एक्सपेक्ट इन माय सेशन. So I'm not like your teacher, and I'm not going to give you gyan like any teacher. So I want all of you to smile, and smile broadly. I want to have the radiation of the smile on my face also, so that I can start with a smile. It has been a lovely smile by Nikunj and others. So मैं ये सेशन को थोड़ा engaging रखना चाहूँगा. I don't want to keep it boring. और 10 साल पहले मैं उधर ही था. आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ काफी सारा चीज सर के बारे में बोला गया, ये परसेंटेज है, वो परसेंटेज. बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक बच्चे थे तो वही हमारा टाइम था जब हम काफी एंजॉय करते थे. आई हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज विद आवर फ्रेंड्स, और बहुत मस्ती की हमने स्कूल में, बहुत एंजॉय किया है. एंड आई थिंक एक चीज जो मिस कर रहे हैं हम सभी बच्चे, एज ए चाइल्ड ऑल्सो आई कैन से, कि जो दोस्तों के साथ मस्ती होती है स्कूल में, जो हम हर दिन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा दोस्त फिर से हमें मिलेगा, उसी बेंच पर हम बैठेंगे, उनके टिफिन को हम खाएंगे साथ में मिलके. तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड का बहुत डिबेट हुआ है. तो ये एक ऐसा चीज है जो हम रोज मिस करते हैं. लंच टाइम पे साथ में घूमना, साथ में मस्ती करना, और साथ में नोट्स बनाना, एग्जाम्स के साथ में तैयारी करना, तो वो नहीं हो पाता है. तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. तो अगर आप चैट बॉक्स देख रहे हैं तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा. सबसे पहला सवाल है बच्चों को कि आप डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 लाइन. अगर आपसे कोई पूछे एक लाइन में कि आपको 15 वर्ड्स के अंदर में अपने आप को डिस्क्राइब करना है, तो आप क्या बताओगे? तो मैं यही चाहूंगा कि सब बच्चे जो भी आप 20 सेकंड सोचें और एक बार चैट पे टाइप करें. और मैं प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे, जनरली वी गिव 5 स्टार्स टू ऑल द किड्स. तो मैं धारावी में बच्चों को पढ़ाता था मुंबई में, तो ये हर बच्चे जिनके आंसर सही होते थे तो उनको 5 स्टार. तो एक बार नाम नोट कर लीजिएगा. श्योर सर. तो देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर. बस अगर कोई आंसर हम लोगों को किसी को भी बहुत अच्छा लगेगा तो आई वांट कि बाद में ऑफलाइन मोड में डिलीवर कर दीजिएगा वो चीज. श्योर सर. अगर आप कोई पूछता है डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 20 to 25 वर्ड्स, जस्ट इन 1 लाइन, नॉट मोर देन 1 लाइन. ऐसा नहीं है कि पहली बार आपसे ये जिंदगी में सवाल पूछा होगा. It should not be the case, and you should be always ready for this question. I guess the batch is of class 9 and 10.
if I'm not Yes, sir, you're right, sir. okay. We have the students So from we have stand an 9. answer from Ananya. Okay. And I love to learn new things. It is told by Ananya, and I want all of you to be expressive. इसमें ये नहीं सोचना कि हमारा आंसर अच्छा होगा या खराब होगा. आदित्य कहते हैं क्यूरियोसिटी माइंड. सुकान का कहना है कि हार्ड वर्किंग एंड ड्रिवन इंडिविजुअल. एंड सक्षम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है. तो आई थिंक इस समय इस क्वेश्चन का टाइम ओवर हो चुका है. आप लोग अपना आंसर सोच भी सकते हैं. टाइप भी किया है कई लोगों ने. बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया. आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द आंसर्स गिवन बाय ऑल ऑफ यू. लेकिन मैं जो आंसर मुझे जो बहुत प्यारा लगा, ये हमें सिखाया गया था, पढ़ाया भी गया. अनन्या ने जो पहला आंसर दिया, दैट इज वन ऑफ द आंसर्स व्हिच आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट. उन्होंने लिखा है समथिंग शी हैज रिटन एंड देन शी हैज रिटन आई लव समथिंग एंड आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स. तो जब आप कभी भी किसी के साथ मिलते हैं तो पीपल जनरली रिमेंबर यू कि आप क्या चीज को प्यार करते हैं, क्या पसंद करते हैं. यू लव टू रीड समथिंग, यू लव टू केयर अबाउट पेट्स. तो ये जो वर्ड होता है, आई लव टू डू दिस, आई लव टू डू दैट, दिस जनरली गिव्स अ सेंस ऑफ क्लोजर एंड प्रॉक्सिनेस. ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? आपसे कोई भी कहीं भी पूछ सकता है. आप 9th-10th में आप और स्कूल्स में जाएंगे, आगे जाएंगे. इसमें फायदा क्या होता है कि अगर आप बताते हैं कि आई लव पेट एनिमल्स या आई लव टू कुक, आई लव टू रीड बुक्स, सो वी ऑल कैन कनेक्ट विथ ईच अदर. हो सकता है कि मुझे भी पेट एनिमल्स प्यारे हों, हो सकता है कि मुझे भी कुकिंग अच्छा लगता हो करना, हो सकता है कि मुझे गाने सुनने, ओल्ड गाने अच्छे लगते हैं. सो इस चीज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हाउ वी शुड प्रेजेंट विथ अदर्स इज कि हमें कुछ ऐसी चीजें बतानी चाहिए जो हम पसंद करते हैं. आई लव टू डू दिस. When you are in the I already know कि आप एक ग्रिजली के ही स्टूडेंट होंगे, तो आपने ये सेशन ज्वाइन कर. तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको इस चीज का ध्यान देना चाहिए. ठीक है. तो इसमें आई वुड से कि हमारी जो आउटराइट विनर रही है वो अनन्या रही. उन्होंने काफी अच्छा आंसर दिया है. दूसरा मैं एक सवाल जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा बच्चा है हमारे बीच में जिसको 5 इंडियन साइंटिस्ट के नाम पता है? कैन एनी वन ऑफ अस टाइप द नेम ऑफ 5 इंडियन साइंटिस्ट? ऐसा चीज है जो मैं हर जगह एक्सपेरिमेंट करता हूँ. दिस इज माय एक्सपेरिमेंटेशन एंड दिस इज माय रिजल्ट ऑफ लास्ट 5 years ऑफ टीचिंग. मैं 9th को लास्ट 5 साल से पढ़ा रहा हूँ. जब से मैं जॉब करता हूँ तब से मैं उनको पढ़ाता हूँ. तो मैंने ये क्वेश्चन देखा है. मैं जानता हूँ कि इट इज नॉट टू फील सॉरी अबाउट आवरसेल्फ या गूगल करने वाला ये सवाल नहीं है. 4 साइंटिस्ट के नाम मुझे भी पता थे. 5वां मैंने भी आज गूगल करके देखा है आप लोगों के सेशन से पहले. तो हमें इसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं कि अगर हमसे कोई एक टाइम में 5 साइंटिस्ट के नाम पूछ दे तो हम लोग ये चीज को, खासकर इंडियन साइंटिस्ट के नाम, तो वी हैव टू सर्च अ लॉट अबाउट. हम लोग को सोचना पड़ जाता है. सोचना पड़ता है कि नहीं सोचना पड़ता है? आप खुद से सोच के देखिएगा. कोई बच्चा भी इंटरेक्ट कर सकता है हमसे. ऐसा नहीं है कि यू कैन स्विच ऑन द माइक एंड यू कैन डायरेक्टली से ऑल्सो, बिकॉज इट बिकम्स रियली ऑड कि मैं एक तरफ से बोले जा रहा हूँ. इट हैज टू बी इंगेजिंग. तो मैं एक बार प्रकाश जी से ये कहूंगा कि आप बच्चों का भी माइक ऑन करवा सकते हैं बीच में, एंड दे कैन आल्सो हैव देयर वॉइस. Right. Students, you are expected to unmute yourself, but one by one, make sure that it doesn't make a noise so that you can interact with sir, as sir is also right saying that the session has to be interactive.
So you can unmute yourself and talk to sir. Please do it. In case you want to talk to sir, right? There is no compulsion to talk. I never compel any student, but if you Right. want, जैसे प्रकाश ने बोला, you should unmute yourself. One or two of you can unmute and you can answer. So the question was asked to me once in an interview directly. Tell me 5 scientists के name, and then it was asked to me, tell me Indian scientists name, and then it was asked, tell me ऐसे scientists के name जो आज जिंदा हैं. तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए पूछा हूँ कि वी ऑल से कि वी आर साइंस स्टूडेंट, वी लव मैथ्स, वी लव साइंस, बट आर वी रियली लविंग साइंस और आर वी रियली लविंग द सब्जेक्ट? सिर्फ हम जो बुक्स मिले हैं उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट ईयर तक पहुंचना चाह रहे हैं. इट इज अ मैटर ऑफ इट इज नॉट अ मैटर ऑफ शेम, इट इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एक्चुअली. जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी नाम दिया जाता है, तो ही इज ऑल्सो नो मोर. तो why are we not aware about the scientists who are still there in our country? जैसे एवेंजर्स का नाम अगर मैं बोलूंगा तो बैटमैन, सुपरमैन सबको पता है. 5 एवेंजर्स के नाम आ जाएंगे तुरंत में बचाया था. आजकल वंडर वुमेन भी आ गई है. तो एवरीवन ऑफ अस के डीसी के, बट टॉक अबाउट द रियल एवेंजर्स. आई डोंट नो व्हाई द सिस्टम हैज नॉट स्टिल इनकलकेटेड दिस फीलिंग के नाम, या कुछ जो इनोवेटर्स हैं हमारे यहाँ, 5 इनोवेटर्स जो हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड इवन 2-3 और बड़ी बड़ी कंपनी के बाद हम इनोवेटर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या चल रहा है, स्टार्टअप में क्या चल रहा है, कौन. ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए. अगला मैं एक सवाल और पूछे कि आप अपने फेवरेट मूवी के नाम टाइप कीजिए. जो भी आपका फेवरेट मूवी है. अब इसमें ये नहीं सोचना है कि हमें जज किया जाएगा. जो भी आपका फेवरेट मूवी आप टाइप कर सकते हैं, एंड ये 5 सेकंड नहीं लगना चाहिए इससे ज्यादा. I think Amir Khan is very popular and very famous. 3 Idiots and Super 30, PK, right? PK, Super 30, I think Special 26 also very popular among students. या ये क्वेश्चन लगता है पूछा गया, आपने पहले भी पूछा है स्टूडेंट से, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक ही आंसर कैसे हो सकता है. तो बहुत लोगों ने छिछोरे पीके सेम ही आंसर दिया है. इट शुड नॉट बिकम कि बाकी लोगों ने पीके आंसर दिया है तो जरूर अच्छा मूवी होगा तो मैं वही दूं. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. दूसरों को जो आपको सही लगे. अगला एक सवाल है कि आपका फेवरेट फूड क्या है, वो आप जरूर टाइप करें. आई टेल यू ये सब क्यों पूछा जा रहा है, मैं लास्ट में बताऊंगा सेशन के. आपको जो फेवरेट फूड लगता है वो बताएं. This is very interesting answer which we have got. कि किसी ने लिखा है sometimes Maggi is my favorite. I don't know कि sometimes Maggi कैसे favorite food हो सकता है. चलिए बढ़िया है. We have our answer. तो इसके तो खुलासे और जो डेटा एनालिटिक्स से बात नहीं की जाएगी. अब मैं आपसे कुछ रियल के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इसके आंसर दीजिएगा. एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें सारे वॉवेल्स हैं. ये थोड़ा हमें ये भी पता चलेगा कि आज के स्टूडेंट्स को टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं. एक ऐसा अल्फाबेट जिसमें सारे वॉवेल्स हैं. आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट. पीपल हैव स्टार्टेड टू आंसर. सो दिस इज वेरी ऑसम. आई मस्ट कांग्रेचुलेट टीचर्स ऑफ ग्रिजली दैट दे हैव रियली गिवन 3 वर्ड्स. मुझे भी आते थे, वो तीनों वर्ड आ चुके हैं यहाँ पे. एंड वन ऑफ द वर्ड्स इज एजुकेशन एंड डायलॉग. So this is good. I must congratulate all of you कि आपने ये चीज को. Cauliflower is also something which is new to me. तो ये काफी अच्छा है. अगला एक सवाल है कि इंडिया का 20 इंडिया में अभी कितने स्टेट्स हैं एक्चुअली. देखिए मैं कोई हाई फाई बातें करने नहीं आया हूँ. आई एम नॉट समवन कि मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ. इंडिया में कितने स्टेट्स हैं ये आप थोड़ा सा सोच समझ के बताइएगा.
ऑप्शंस आपके पास केबीसी के, ये 1 करोड़ का सवाल है। ऑप्शंस आपके हैं 29, 28, 25 या 30। I think if I would have given 31 as option, तो कुछ लोग 31 पे भी चले जाते। As soon as you give something as option, people start feeling कि ये भी सही हो सकता है। तो I can see a lot of you have given the answer as 29. The right answer is 28, in my opinion. 28. Right. J&K has now been removed as state. So our union territories have increased and states have decreased. So which is the last state which was created in India? I think the answer is correct. The answer. I just wanted to brush up these things कि देखते हैं कि बच्चे कहाँ पे भी चल रहे हैं, आजकल क्या पढ़ाई हो रहा है। प्रकाश जी मुझे 10 से 15 मिनट दीजिएगा। This is the social experiment which we do every time. Sure sir, please, it's all yours sir. So this is the right answer बच्चों, तेलंगाना is the right answer and आपने काफी अच्छा आंसर दिया है। और एक क्वेश्चन और है मेरा, आप 10 वर्ड्स बताएं जिसमें ए अल्फाबेट नहीं आता है। If you can type 10 words in 1 minute, जिसमें ए अल्फाबेट does not come, like try, fly, you can know 10 words. Boy, sky, cricket. I think one chocolate must be given to washing. Who is that boy? I have got the answer. Vashish Raj. Vashish Raj, can you hear me? Yes, sir. आपका आंसर सही है। तो ये एक्चुअली में इंटरव्यू में पूछा जाता है। These all questions are interview questions. तो इसका आंसर बेसिकली यही है। 1 से लेकर अगर 100 तक वर्ड काउंट करेंगे तो उसमें कभी भी ए नहीं आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इनफैक्ट 999 तक ए डज नॉट कम। The first time A comes is 1000. When we write 1000, then we get A. So Absolutely. 999 also does not come to me. So if you think about it, this is very logical, very simple. Yet we don't directly. It does not come directly in our mind. है कि नहीं? We think about try, sky, fly, cry. मुझसे पूछा गया तो मैं यही सब सोच रहा था। Then I suddenly realized कि ये तो trick question होगा। क्योंकि 10 words directly is very difficult. So वशिष्ठ का एक चॉकलेट बनता है। This was a 5-star problem which he has definitely cracked. Last क्वेश्चन भी चाहे लास्ट कि हाउ मेनी टाइम्स, ध्यान से सुनिएगा, द डिजिट 3 कम्स जब हम लोग 1 से 40 लिखते हैं। इन बिटवीन 1 to 40, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 3 कम्स? So make sure you have counted it properly. So I have again calculated कि यार कुछ गलत ना पढ़ा दूं आप लोगों को। So the right answer is 14. जिन्होंने भी 14 आंसर दिया है, you can do a clap for yourself. And अगर कोई आपके लिए ताली नहीं बजा रहा है तो आप खुद के लिए पीठ थपथपा के ताली बजा सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड की ताली इस तरह से बजाई जाती है, आप खुद के लिए बजा सकते हैं। एंड जिन्होंने भी आंसर 4 दिया है उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 में भी आता है, 3 13 में भी आता है, देन 23 में भी आता है, एंड देन 30 में भी आता है, 31 में भी आता है, 32 में भी आता है, 33 में 2 बार आता है, 34, 35, 36, 37, 38, 39. So we have the digit 3 in many of them. तो क्या होता है कि हम लोग सोच नहीं पाते हैं डायरेक्टली। We think कि 33 में 2 बार, and we think या 23 and we think कि यही आंसर है। तो थोड़ा सा ये सब में हम लोग को सोचना चाहिए। तो सारे बच्चों हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में बस 20 मिनट आपका लूंगा या 10 मिनट, और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, मैं बताऊंगा। पहला और अटमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 8th, 9th, 10th क्लास में मुझे यूपीएससी एग्जाम के बारे में ज्यादा कोई आइडिया नहीं था, और मैं यूपीएससी के बारे में आपको
क्योंकि ये एग्जाम आप 11th-12th में नहीं दे सकते हैं। ये एग्जाम आप कॉलेज डिग्री पूरा नहीं करते हैं तब तक नहीं दे सकते हैं। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी कैसे करें 9th-10th में, आपको अभी तैयारी कर। अब आप ये अगर पूछेंगे कि 40 साल के बाद लोगों को, तो ये आंसर हम अभी थोड़ी ना दे सकते हैं। तो दीज आर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड व्हेन द टाइम कम्स। तो व्हाट शुड वी डू एक्चुअली इन क्लास 9, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कुछ चीजें हैं जो बताऊंगा आपको। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो भी चीज आप पढ़ते हैं, मैं आप लोगों इसलिए पूछ रहा था कि जो चीजें आप पढ़ते हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ चीजों को देख लिए, आपने समझ लिया और फिर भी आप उसको बस एक बार पढ़ के मार्क्स से नहीं पढ़ा करिए। मार्क्स मस्ट बी द बाई प्रोडक्ट। कई लोगों ने 3 इडियट्स अपनी मूवी बताई है, तो 3 इडियट्स में एक बहुत बड़ी कहावत है, अगर अच्छा काम करोगे तो नंबर झक मारता है आपके पीछे, कामयाबी झक मारता है आपके पीछे आएगी अगर मेहनत पूरी होगी तो। इस टाइप का एक डायलॉग है। वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, वो एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। हमें अपना एफर्ट्स 100% देना चाहिए। 100% एफर्ट्स देने का मतलब यही होता है कि जब भी हम कोई चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम उसको ग्रास्प करके पढ़ें, हम समझ कर पढ़ें। दूसरी चीज, 9th और 10th की सिलेबस थोड़ी सी आसान होती है सीबीएसई बोर्ड की। मैं सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। तो होता क्या है कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है, फिर हम एक अपना मूवी टाइम शुरू करते हैं। पहले तो लोग इडियट बॉक्स के सामने देखते थे, एंड इडियट बॉक्स का मतलब टीवी होता था। आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं। फिर 9th-10th है, अब हम लोग पढ़ ही लिए हैं, 95% मेरा आता ही है, तब भी मम्मी पापा जबरदस्ती बोलते रहते हैं और पढ़ो, अब कितना पढ़ो। द गुड थिंग इज वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर अचीवमेंट। द बैड थिंग इज वी मस्ट नॉट बिकम कम्प्लीसेंट। हमें खुश रहना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं परिस्थितियों के बावजूद। आपको एक मौका मिला है, आप बिजली स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके पास अच्छे टीचर्स होंगे, आपके पास अच्छे पेरेंट्स हैं जो आपको अफोर्ड कर रहे हैं पढ़ाने का। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, फिर भी वो जहाँ वहाँ रहा आपने सुना होगा, वो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको वो प्लेटफॉर्म दिया गया है, अगर अच्छे टीचर हैं, तो आपको टेंशन करिए। 9th और 10th में मैंने यही रियलाइज किया। आप लोग जो आज देखते हैं अचीवमेंट्स अगर हैं इतने, तो उस समय मैंने ये देखा कि 9th और 10th का मेरा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो चुका था। तो जो फ्री टाइम था, तो मैंने अपने आप को चैलेंज करना शुरू किया कि ठीक है, मैं स्कूल में तो टॉप कर रहा हूँ, तो क्या मैं सिटी में टॉप कर सकता हूँ, क्या मैं स्टेट में टॉप कर सकता हूँ, क्या मैं नेशनल लेवल पे टॉप कर सकता हूँ। तो आपका सोच ये होना चाहिए, आपका ये सोच नहीं होना चाहिए कि मैं आईएएस बन जाऊंगा एक दिन में। हर सीढ़ी आपको एक पायदान करके चढ़नी है। अभी जो आपका रियल काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर मैंने 9th क्लास की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे 10th के अगर खत्म हो चुके हैं सिलेबस 9th के, तो मुझे 10th का अभी से शुरू कर देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप 9th को छोड़ के 10th को स्टार्ट कीजिए, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सप्लोर कीजिए, आप अपने आप को पुश कीजिए, एक्स्ट्रा पढ़िए। 9th और 11th का सिलेबस काफी मैच करता है, पर लोग क्या करते हैं कि 9th को बहुत हल्के में लेते हैं, 10th को भी आराम से पढ़ते हैं, और 11th-12th अचानक से बहुत ज्यादा सिलेबस आ जाता है आपके पास, एंड इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कंप्लीट इन 2 ईयर्स। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 10 में 10 सीजीपी आते हैं, 95% से ऊपर आते हैं, 96% आ गया, एंड देन 11th-12th में उनके 70% आ रहे हैं। हमारी ही बहुत सारे दोस्त थी जो हमारे साथ पढ़ती थी, तो अगर मैंने 10th में भी 96.6 लाया और 12th में भी 96.4, वो इसलिए पॉसिबल हो गया क्योंकि मैंने 11th-12th का 1/4 सिलेबस ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ लिया था। जैसे 9th में अगर लॉज ऑफ मोशन है, तो वो 11th में फिर से पढ़ना है। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करके देखिए खुद को। उस समय मैं रांची में बेसिकली मैं वही बोल रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे सुपर टैलेंटेड होते हैं। तो मैं 9th में फिटजी ज्वाइन किया था रांची में, तो मैं बहुत अपने आप को 30 मार खान समझता था 9th में। मैं काफी अच्छा पढ़ता हूँ, स्कूल में तो मुझे कोई नहीं हरा सकता है, 98% लाता हूँ। जैसे ही मैं वहां गया, मैंने देखा कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब चुटकियों में सवाल बना रहे हैं। जिस सवाल के लिए मुझे 5 स्टेप लेना पड़ता था मैथ्स का, पीपल आर देयर हु आर सॉल्विंग लाइक ए रियल प्रो, जो आप बोलते हैं ना एमेच्योर गेम खेलना और प्रो गेम खेलना। तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ सौरभ तिवारी हूँ और विराट कोहली सामने खड़ा हो। विराट कोहली बनने के लिए पुश करना है खुद को, MS धोनी बनने के लिए रोज पुश करना है। वो सवाल आपसे रोज पूछना है, खुद से रोज पूछना है कि क्या
पीटी का काम करके मैं फिर से खेल सकता हूँ। इसका मतलब क्या मैं इसके बाद भी और पढ़ सकता हूँ? क्या 1 घंटा मैं और एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकता हूँ? हम सभी लोग कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। आप घर पे भी रहते हैं तो आप होमवर्क कर लिए, अपने क्लास वर्क कर लिया, लेकिन अगर आप उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना एफर्ट और डालेंगे कि नहीं मैं खुद के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के पढ़ूं, तो आप धीरे 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 आपके ब्रेन को पुश करेंगे, तभी आप जाके रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, एक बहुत अच्छी, आप लोग बहुत साइफाई मूवीज देखते होंगे तो उसमें बहुत अच्छी बात कही जाती है कि आप जितना सोच सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। जो भी क्रिएशन है, जितना आपका दिमाग सोच सकता है, और हम लोग दिमाग, जो ब्रेन को हम लोग, द यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑफ आवर ब्रेन इज वेरी, हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ब्रेन का। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अभी से ही आप उस चीज को थोड़ा सा पुश करना सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता है। अगर आपकी कोई हॉबीज है, मेरी हॉबीज लिखना, कहानी लिखना मेरी हॉबीज है। आज भी मैं लूडो खेलता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ हर रात 1 मैच लूडो जरूर खेल के सोता हूँ, मम्मी पापा भैया के साथ। द रीजन इज कि होता है इस मोबाइल वर्ल्ड में हम लोग खुद के मोबाइल इतना होते जा रहे हैं कि हम लोग मम्मी पापा के लिए भी टाइम नहीं निकालते हैं। आई है, डियर फ्रेंड्स, डियर जूनियर्स, लेट अस कॉन्शियस एफर्ट्स। आपका जो टाइम है ये बहुत कीमती है। इसी समय चीजें चेंज होने लगती हैं ड्रास्टिकली, तो इसी समय हम लोग, क्या होता है, ये ईगो क्लैश आने लगता है कभी कभी पेरेंट्स से, कभी कभी टीचर से। वो नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स के साथ हम अच्छा टॉक करें, नाइस टॉक करें। वी मस्ट फाइंड आउट टाइम टू टॉक टू आवर पेरेंट्स। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ चल देगा, लेकिन पेरेंट्स के साथ समय अगर बिता दिया आपने, आप कॉलेज में चले जाओगे तो आप उनको बहुत मिस करोगे। और हमें ये भी लगने लगता है 9th-10th में आके कि हम बहुत बड़े बन गए हैं। देखो 6 क्लास के बच्चे कितने छोटे हैं। जब मैं 12th में गया तो मुझे लगता था देखो 9th-10th के बच्चे कितने छोटे हैं। तो जो रिलेटिव लगता है कि हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, आप हमेशा सोचिए कि आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से आप आज भी बच्चे हैं। तो कभी मम्मी आपको डांट के बताती है तो उसको समझिए आपके हित में बता रही है। मेरा सबसे प्राइमरी काम इस सेशन का यही था कि कभी भी लाइफ में 2 चीज नहीं करना। अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज में हर्ट नहीं करो, और अपने टीचर्स के बारे में कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करो। अगर आप ये 2 चीजें करेंगे, नहीं करेंगे, आप हमेशा लाइफ में सक्सीड करेंगे। कभी कभी हम लोग की ये फीलिंग आती है कि टीचर्स हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम टीचर्स हमें ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, टीचर्स को नहीं आता है, हमें आता है। बहुत बार हमें लगने लगता है कि टीचर्स हम ज्यादा जान गए हैं, कैसा पढ़ाते हैं। देखिए, हर वो टीचर, हर वो गुरु आपको बहुत ज्ञान दे रहा है, वो कॉन्शियस एफर्ट करता है, वो अपने परिवार को भी चलाते हैं उसी ज्ञान को। देखिए, आपको धीरे धीरे लगने लगे कि टीचर से आप ज्यादा जानने लगे हैं, तो ये अच्छी बात है। उस टीचर के लिए रिवॉर्डिंग है कि उसका जो बच्चा है वो, उसको ऐसा फीलिंग आता है। पर टीचर्स को बहुत कुछ पता होता है। ट्रस्ट मी नॉट, ये कहने के लिए मुझे किसी स्कूल ने आज तक पैसे नहीं दिए हैं कि टीचर्स के बारे में तारीफ करो। ये मैं आज से, बचपन से यही करता आया हूँ कि मेरे टीचर्स ही मेरे परमात्मा हैं। भाई, उन्होंने मुझे पढ़ाया तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। ये 6th-7th में जो टीचर पढ़ाते थे, वो मुझसे जब मिलने आते हैं तो मैं उनके पैर छू के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि टीचर्स रियल गुरु होते हैं, पेरेंट्स रियल गुरु होते हैं। समय कितना भी बदल जाए, जो भारतीय संस्कृति है, जो आपको सिखाया गया है, जो घर के नियम होते हैं, जो चीजें अच्छी हैं उसे नहीं बदलना चाहिए। जो बुरी आदतें होती है उसे बदलना चाहिए। आप सुबह उठते हैं, एज अ कोई भी आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, आप अपने माता पिता का पैर छूकर या आप उनको प्रणाम करके किसी भी फॉर्म में जरूर देख कर स्टार्ट कीजिए। इफ यू टेक ब्लेसिंग्स इन द मॉर्निंग, इट विल ऑलवेज गिव यू अ राइट वाइब्स फॉर द एंटायर डे। When you meet anyone, you should always say with a pleasant smile, thank you। अगर कोई भी काम करता है आपके लिए, छोटा सा काम है, कोई पानी ला के आपको दे रहा है, उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होके, अरे मम्मी तुम ये करो ना, क्यों ऐसे परेशान करियो, मेरा क्लास चल रहा है। क्लास नहीं भी चल रहा है तो गेम चल रहा है। मम्मी को क्या पता चल रहा है कि क्लास चल रहा है या गेम चल रहा है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। पानी लेना, पानी रखना घर में, ये सब चीजें हमें खुद करनी चाहिए। ये वही एज था जब मैंने चाय बनाना, खाना बनाना खुद सीख लिया था। तो प्लीज कभी अपने मम्मी पापा को भी आप चाय बना के, अपनी बहन को, अपने भैया को चाय बना के पिलाइए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लाइफ इज नॉट अबाउट स्टडिंग फ्रॉम द बुक्स। मैं अगर सक्सीड किया हूँ इसलिए सक्सीड किया हूँ क्योंकि लाइफ के मैंने बेसिक चीजों को देखा है, समझा है कि कितनी दिक्कतें हमारे घर में थी, क्या परिवार था, कैसा था। उस चीजों को समझिए, वैल्यूज को समझिए, एथिकल वैल्यूज, जो इंडियन कल्चर का वैल्यूज है उसको समझिए। फिलोसॉफिकल चीजें आपको बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे हम लोग मैकेनिकल होते जा रहे हैं अपने अप्रोच में।
हम नंबर तो ला रहे हैं पर हमें ये नहीं पता कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। अगर मैं ये पूछ दूं आप लोगों से कि आप क्या करना चाहते हैं आगे चल के, I don't want to ask this question because 90% of you will say I want to become this, I want to become that, I want to become ये वो, बट आप करना क्या चाहते हैं एक्चुअली लाइफ में, वो क्यों करना चाहते हैं, आप IIT से क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप आगे चल के अच्छे मार्क्स क्यों लाना चाहते हैं? The answer is very simple. You want to live a happy life, you want to live a contained life, you want to live a life of self-fulfillment, and to lead those kind of life, you must start feeling कि छोटी खुशियां अभी से अप्रिशिएट करनी होगी। तो बड़ा तराजू या पिटारा नहीं खुलेगा आपकी लाइफ में जिससे आपको ये सब चीज मिलेगा। छोटे छोटे मोमेंट्स को जरूर सेलिब्रेट करिए। आई हैव सीन ए वेरी लॉन्ग कल्चर डेवलपिंग इन आवर इकोसिस्टम, जहां लोग बाइक्स 9th-10th में चलाने लगते हैं। आई विल टेल यू ए वेरी सिंपल स्टोरी। हमारे पिताजी एक बार बाइक पे उनको एक्सीडेंट हो गया था उनका। ही वाज अबाउट 50 इयर्स। तो हमने पूछा आपका एक्सीडेंट क्यों हो गया? था वो गलत तरीके से स्टंट दिखा रहा था और वो अचानक से ब्रेक लगा दिया पड़ा बाइक पे और वो थोड़ा सा गिर गए थे। नाउ आई विल टेल यू व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी भी बाइक सब अगर आप लाइसेंस नहीं आप गलत तरीके से चलाते हैं, नॉट ओनली पुट योर लाइफ इन डेंजर, यू ऑल्सो पुट लाइफ ऑफ मेनी पीपल लाइक जी जो अपना सही से ड्राइविंग कर रहे होंगे, लाइक अविनाश जी जो अपना लेन में ड्राइव करना चाहते हैं, सही से करना चाहते हैं। स्टिल वी आर सो इग्नोरेंट ऑफ दोस फैक्ट्स, उनको ध्यान ही नहीं देते हमारे लिए। वो इम्पोर्टेंट ही कि कोई आदमी क्रॉस कर रहा है। अभी देखिए आपका एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इंथुजियाज्म बहुत हाई होता है, उसको पॉजिटिवली डायरेक्ट करिए, उसको ध्यान से समझिए कि आप कहाँ डायरेक्ट करना चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्ट थिंग, जो मेहनत मैंने 9th-10th में की थी आज उसी का फल मैं मतलब मैं जो जैसा आप बीज बोते हैं वैसा पाते हैं। मैंने 9th-10th में कितनी मेहनत की थी, इतनी पढ़ाई की, इतनी एक्स्ट्रा करिक्स को एक्सप्लोर किया जो भी मैं कर सकता था और इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया। इट इज़ वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड कि हाँ भाई ये मूवी हो गया, यहाँ पे पिकनिक चले गए। आई एम वेरी थैंकफुल टू लॉकडाउन समटाइम्स कि ये सब चीज़ों से तो एटलीस्ट बच्चों को बचाया है इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन से, लेकिन आप घर में भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए और थोड़ा सा लोगों के बारे में जागरूक रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आपके पास दोनों कान हैं जो कि सुन सकते हैं, मेरे पास मुंह है जिससे कई लोग होते हैं जो कि नहीं बोल पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है। मैं एक एनजीओ के साथ था, मैं 1 साल उनके साथ था। अब CSR एक्टिविटी होती है हमारी कंपनीज की, तो एक बार बच्चे आए थे, उन्होंने आई थिंक हैंगिंग स्पाइडरमैन है कुछ उल्टा स्पाइडरमैन उन्होंने कॉफी मग पे पेंट किया था। तो हम लोग देख के बहुत खुश हुए और हम लोग बहुत ताली बजाए। वी केम टू नो कि दोज किड्स कांट लिसन, बात समझ रहे हैं? तो वैसे बच्चे थे जो कि सुन नहीं सकते थे। अब भाई ये हमें समझ नहीं आया कि जो हम ताली ऐसे करके बजा रहे हैं क्या वो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको, या हम उनको ये एहसास दिला रहे हैं आप नहीं सुन सकते हैं, देखिए हम ताली बजा रहे हैं। दिस वाज एथिकल डायलेमा टू ऑल ऑफ अस जब हम कंपनी में काम करते हैं। एंड देन वी रियलाइज कि वी आर सो फुलिश, कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग इन सब चीजों को ध्यान ही नहीं देते। हम रोते रहते हैं, हे भगवान सारा दुखड़ा मेरे पे ही क्यों आ गया, हे भगवान ये एग्जाम बस पार करा दो। उसके बाद तो मैं एकदम प्रॉमिस करता हूँ कि अगली सेशन में मैं बहुत पढ़ूंगा, इस बार किसी तरह पास करा दो मुझे, इस बार मुझे 96% लेते आओ, बस ये पेपर मेरा लटक रहा है। और हम लोग जब भी हमारे साथ कुछ खराब होता है तो हम लोग भगवान को क्रिटिसिज्म करते हैं, ओ गॉड हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारे ही साथ क्यों परेशानी आ रही है। आपके साथ बहुत कम परेशानी है लाइफ में। इफ यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट रियल प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड NCERT, उसमें गांधी जी का तलिस्मान लिखा रहता है। तो गांधी जी ने तलिस्मान में लिखा है कि जब भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप उस गरीब आदमी के बारे में सोचिए जो स्ट्रीट पे है, जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, एंड देन यू कंपेयर योरसेल्फ विद दैट पर्सन and you will always feel better off because you are better off. So many a times what happens is कि we are so occupied with ourselves कि हमारे दुख बहुत ज्यादा हैं लाइफ में, हमारे साथ बहुत कष्ट है और हम लोग क्या करते हैं कि अपना दुख क्रिएट करते हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन वरीज। अरे उसके पास ये वाली बाइक आ गई पल्सर की, हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये वाला मोबाइल है, हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये लैपटॉप है, मेरे पास ऐसा लैपटॉप क्यों है। दीज आर नॉनसेंसिकल
दीज आर वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। मेरा ये देखिए आज भी मोबाइल है, पता नहीं हूँ किसी को, ये मोबाइल हमारा यहाँ से स्क्रैच है, पूरा टूटा हुआ है, बट ये मोबाइल मेरे पास आज से 3 साल से है और ये मेरा अपना मोबाइल है जिसका हूँ। मुझे ये कोई दौड़ नहीं चल रही है। आईफोन है तो मेरे पास आईफोन होना चाहिए। 8,000 का मेरा मोबाइल है जो सब काम करता है, टूटा हुआ है, मुझसे कॉल पे बात करवा लेता है, इससे ज्यादा मुझे उसका यूज नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है ना कि सेल्फ कंटेंट हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोग दूसरों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हैं। अरे वैसे लोगों को देखिए महत्व बढ़ाने के लिए जिससे आप इंस्पायर होते हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि आप दूसरे एपीजे क्यों नहीं बन सकते हैं, कि आपके बारे में लोग कहानियां बनाए। आप कहानी पढ़ के वो बोलते हैं कि ड्रीम्स दैट डोंट, वो बोलते हैं ना ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप, यू शुड सी ड्रीम्स। वैसे सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने नहीं दें। तो फिर वो पढ़ के भी आप आराम से कैसे सो जाते हैं, अच्छे अच्छे सपने कैसे देख लेते हैं। मेरा ये प्रॉब्लम है कि व्हेन यू नो द रियलिटी एंड द हार्श ट्रूथ यू शुड, जो हम लोग का एक कॉलेज टेस्ट होता था उसका नाम था IIT कानपुर में अंतराग्नि। तो आपके अंदर से वो आग लगनी चाहिए कि आपको अंदर से हमेशा लगते रहना चाहिए कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू बेस्ट ऑफ आवर टाइम, हमें कुछ यूटिलाइज करना है टाइम। मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? अगर मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं कोडिंग क्यों नहीं शुरू करता हूँ? मैं कुछ सीखना क्यों नहीं चाहता हूँ? आई विल गिव यू अ वेरी अगेन एग्जांपल फ्रॉम माय होम। मेरी एक सिस्टर है, वो यूएस में रहती है, वो 9th क्लास में कैलकुलस सॉल्व करती थी। इन 10th क्लास शी गॉट ऑफर, अपनी सिस्टर है मौसी की बेटी, 10th क्लास शी गॉट ऑफर फ्रॉम MIT फॉर एडमिशन। नाउ शी हैज स्टडीड फ्रॉम स्टैनफोर्ड, शी हैड फ्रॉम हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, अब जो भी वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटी है उसको सब जगह से आया था। वो क्यों आया था? हम लोग बचपन से देखते थे। वो जब 6th क्लास में इंडिया आई थी तो मेरे से 10th क्लास का क्वेश्चन पूछ रही थी। फिर मैंने उसके बुक्स को देखा जो यूएस में चलता है। They were not like कि if x equal to 2 then x square plus y square क्या होगा। उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि जिसमें एनालाइज करना होता है कि बेसिकली दे विल गिव यू अ केस स्टडी, देन यू हैव टू योरसेल्फ थिंक कि x क्या है, y क्या है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, x क्या है, y क्या है। उससे ज्यादा बढ़ के आपको पुश करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल के लिए पुश कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। और मैं सभी बच्चों को ये बोलता हूँ कि जिस बच्चे का 75% आता है, मैं ये नहीं बोलता टॉप कर जाइए। मेरी अपनी छोटी बहन है, वो भी DAV कपिल देव से पढ़ी थी, जस्ट हमसे 1 साल छोटी थी। उसके 8th बोर्ड में आए थे मैथ्स में 75 और उसके टोटल परसेंटेज थे 88। हमारे यहाँ 8th बोर्ड भी होता था DAV में। इन 10th बोर्ड आई गॉट 100 इन मैथ्स। A year later my own sister got 100 in maths also and 100 in science also। और वो ऐसी बच्ची थी जो कि बहुत ही पुअर थी पढ़ने में। तो उसका जो मोमेंट था वो कैसे चेंज आया? 9th क्लास। 9th क्लास में एवरी डे शी यूज्ड टू सॉल्व एटलीस्ट 100 प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ एवरी सिंगल डे। आई सी RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, Adi Hunt, I think you name the book and she had solved the book। And I could not get 100 in science, but she could get 100 in science क्योंकि उसने सब कुछ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था। एंड उसके पास मेंटर्स थे लाइक अस, हम लोगों ने गाइड किया, टीचर्स ने गाइड किया। तो पॉइंट यही है कि ऐसा सोच लेना कि मैं 75 ला रहा हूँ तो मेरा जो लेवल है वो 80 तक ही जाएगा, ऐसा गलत है। यू कैन ऑलवेज स्कोर वेल इफ यू हैव दैट पैशन। आप सुपर 30 मूवी देखते हैं, आप प्रेरित होते हैं, बट आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप सुपर 30 जैसा कर सकते हैं कुछ? आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है। कल को IIT में आपका रैंक 1 आना चाहिए। आप न्यू फेस आइकन ऑफ द ये बनने चाहिए। ग्रिजली स्कूल के पोस्टर पे, मैं तो स्कूल में गया था तो पहले दिन मैंने बोर्ड देखा था। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं 4th क्लास में एडमिशन लिया था तो मैंने जो स्कूल के टॉपर बोर्ड होते हैं, तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे, पिताजी ने बोला वो तो तुम्हारे हाथ में। तो मैं पहले 3rd आता था, फिर मैंने धीरे धीरे 2nd आना शुरू किया, फिर मैंने शुरू किया, फिर मुझे उसकी आदत पड़ गई। फिर मैंने कंपटीशन को, टॉपर का 97% है तो 98 के लिए पूछ किया। इनफैक्ट इस तरह से मैं अपने आप को परफेक्ट करता था। हमारे घर में बहुत अच्छा सिस्टम था। हमारे पिताजी बोलते 100 मार्क्स आएगा तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा किसी सब्जेक्ट में, मार्क्स आएगा तो 50 रुपीज दूंगा, और 98 मार्क्स आएगा तो 25 रुपीज दूंगा। जमाने में वो बहुत बड़ी बात थी। तो 99 से 100 जो 1 मार्क्स होता था वो मेरे लिए 50 रुपीज के बराबर था। वो मैं हमेशा पुश करता था कि मैं कोई भी क्वेश्चन गलत ना करूं। ये और बात है कि आज तक कभी पैसा मिला नहीं, वो सिर्फ जोड़ के रह गया कि आज तक मेरे 4000 रुपए बने हैं। हमारे पिताजी ने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन वो अच्छा लगता है कि हमने इतना पैसा अर्न किया अपने मार्क्स को लाके। तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ये बहुत जरूरी है। अब रहा सवाल 11th और 12th का,
एक और मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो थोड़ा अच्छा करने लगते हैं, वो बच्चे जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं पढ़ने में, उनके साथ बातचीत करना बंद कर देते हैं। ये भी बहुत गलत आदत है। हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्कूल में 50-60% की मार्क्स लाता था, लेकिन हम लोग लास्ट में बोर्ड में उनके भी 85-86% मार्क्स आए थे। कभी भी पढ़ाई सिलोज में नहीं करनी चाहिए। आप खुद पढ़ के अच्छा नंबर लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 3 अपने दोस्तों को अच्छा नंबर लाने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया, अपने जूनियर्स को पढ़ाया, वो बड़ी बात है। कई लोग बोलते हैं 9-10 पे हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मीडियम आ गया है, आप गूगल मीट अपने छोटे जूनियर्स के साथ करिए। हम लोग क्या करते थे, स्कूल में क्लब चलाते थे कि आप जो कि हमसे जूनियर थे, क्योंकि 9th के बच्चे 8th को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा स्कूल भी इस चीज को मोटिवेट करता था कि ऐसा होने से बहुत फायदा हो रहा था स्कूल को, रिजल्ट एंड परसेंटेजेज बढ़ रहा था। तो हमारे बैच ने ये शुरू किया था, और ये आज तक डीएवी में जो हम लोग जिस डीएवी से पढ़ते वो चलता है कि 1 साल जूनियर बच्चों को हम लोग मेंटर बनते थे, हम लोग उनके गाइड बनते थे। तो 1-on-1 मेंटरिंग भी होता था। मेरे अंदर 2 बच्चे थे, तो मैं उन दोनों बच्चों को गाइड करता था। वो रिलेशन, वो बॉन्ड इतना अच्छा है कि वो दोनों जूनियर आज ही मुझे कॉल करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, राइट मेंटरशिप देना चाहिए जो हमने लाइफ से सीखा है, और राइट मेंटर सीख भी करने चाहिए। और ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हमें तो सब कुछ आता है। कई बार हमें ये घमंड होने लगता है, हमें तो सब कुछ आता है, कोई टीचर बताए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है। बी हम्बल, बी पोलाइट, इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। लास्ट 5-6 चीजें आपको बताऊंगा। पहली बात कि अभी 5 जून आ रहा है। 5 जून को क्या है, कोई बता सकता है? किसी का बर्थडे हो सकता है, पर मैं बर्थडे के सेंस में नहीं पूछ रहा हूँ। 5 जून को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। यस, इट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो देखिए, आपने देखिए अभी कोविड कितना खतरनाक चला है, और अगले वेव में ये भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि बच्चों में इफेक्ट करे। वी नेवर नो, वी आर जस्ट प्रेइंग कि ऐसा ना हो। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अवसर पर अभी आपने देखा कि सिलेंडर्स वगैरह आप ही के फाउंडेशन में आज जी हैं, कई लोग मिल के हम लोगों को कई सारी चीजें कोविड पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कराई। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर स्कूल ऑलवेज। ये भी चीज एक मैं बताना भूल गया था कि मुझसे आज भी लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से पढ़े, तो मैं गर्व के साथ बोलता हूँ मैं MBDAV पब्लिक स्कूल लोहरदगा से पढ़ा था 4th क्लास तक। एक ऐसा स्कूल था जिसमें मुझे मेरे बचपन के टैलेंट को निखारा है। फिर मैं DAV कपिल देव से पढ़ा था, फिर मैं श्यामली से पढ़ा था। तो श्यामली तो मैं बाद में गया, पहली मेरी पढ़ाई थी लोहरदगा में, एक ऐसा छोटा जगह जहाँ से बच्चे ड्रीम नहीं करते हैं कि अच्छा कर सके। तो आप हमेशा अपने टीचर्स, अपने स्कूल पे प्राउड फीलिंग रखिए कि हाँ भाई मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लांट्स नेचुरल ऑक्सीजन देता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की हम लोग खोज रहे हैं, आपके अंदर 2 सिलेंडर ऑलरेडी हैं, जो आपके लंग्स के दोनों लंग्स हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा 2 ही सिलेंडर पे काम चले, वो कहते हैं ना कि जो बच्चा साइकिल चलाता है तो 3 पहियों पे चलाता है, फिर साइकिल चलाता है। तो हमने बच्चा वाला स्टेज देख लिया, हमने एक बाहर वाला सिलेंडर लगा के लोगों को देख लिया। अब समय आ गया दोनों सिलेंडर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लांट करें, उन एक्चुअल में ऑक्सीजन देता है। न्यूटन का 3rd लॉ क्या कहता है? एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने क्या किया, हमसे पेड़ काट दिए। हमें लगा कुछ फर्क नहीं, हम तो एक ही पेड़ काटे हैं, हमारा क्या जाता है। अगर अमेज़न में पेड़ कट रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है उससे? हमारे यहाँ थोड़ी। हमने अपने घर का पानी बर्बाद किया, वेस्ट किया। हमारे घर में तो मोटर लगा हुआ है। अब कई जगह झारखंड जोन में घोषित होते जा रहे हैं, अनटाइमली रेनफॉल होता है, ये या साइक्लोन सब अनटाइमली आता है। ये क्यों आ रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर एंड यू शुड बी द एजेंट्स ऑफ चेंज। आपको एजुकेशन मिला है, यू हैव बीन एजुकेटेड बाय फॉर इट। अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, अपने मोहल्ले में ये सब स्टार्ट करें। छोटे छोटे बच्चे मैं देखता था, मैं मुंबई में 4 साल था, वो लोग अपना सोसाइटी बना के 100 पौधे लगाते थे। तो आई थिंक कि ऑल ऑफ यू कैन डू दैट। आप अपने स्कूल के साथ मिलकर 100, 150, 200 प्लांट्स को प्लांट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए। हम लोग हर प्लांट के आगे एक बच्चे का नाम देते थे कि ये इसका पौधा है, अब ये इसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे करता है। आप देखिए, आप अपना पौधा रोज बचाइएगा। तो मेक श्योर कि यू प्लांट ए ट्री बाय योर नेम। ये अनमोल का पौधा है, ये निकुंज का पौधा है, ये शुभम का पौधा है, ये श्रुति का पौधा है, एंड ये श्रुति की जिम्मेदारी है कि वो उस पौधे को बचा कर रखेगी। तो ये चीजें होनी चाहिए।
पहली बात है कि पौधों को प्लांट जरूर कीजिएगा। दूसरी बात है वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप लोग का तो टाइम अभी नहीं आया वैक्सीनेशन का, और आपके घर में अगर कोई भी अफवाह है, आप समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन प्रोसेस इज लाइक इफ यू बॉयल इन द कंटेनर। तो क्या होता है कि जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। उसी तरह से वैक्सीन जब हम लेते हैं तो हमारा बॉडी भी उसी तरह से बॉयल करता है और हमारे कीटाणु मर जाते हैं। ये और बात है कि अगर आप दूध को गर्म करके पतीले को खाली छोड़ दें तो बाहर से कीटाणु जरूर गिरेगा। इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद अगर आप मास्क पहनना छोड़ दें बाहर निकल के, आपके अंदर फिर से कोरोना वायरस आ जाएगा। तीसरी बात मैं कहूँगा कि ज़्यादा न्यूज़ देखे नहीं, बहुत चीज़ें अभी बहुत नेगेटिव वे में दिखाई जाती हैं। मैं फ्रॉम द मीडिया ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको पॉजिटिव ही चीज़ देखनी चाहिए। इनफैक्ट जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ काम से अभी भी, तो मैं आके कोई तेलुगु मूवी देख लेता हूँ आराम से 2-3 घंटे, तो मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। तो समटाइम्स व्हाट यू नीड इज एक्चुअली कि आपको अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, जो कि आपको अननेसेसरली नेगेटिविटी अपने लाइफ में ऐड नहीं करनी चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि कई बच्चे ये बोलते हैं मुझसे कि हाँ मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन यूट्यूब पर पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब गाना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, ये कंट्रोल आपके खुद का होना चाहिए कि आप कितना देर तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगा, मैं ये डिलीट कर दूंगा, मैं वो डिलीट कर दूंगा, उसके बाद पढ़ाई करूंगा। अरे ये सब चीजें करने से नहीं होता है, होता है यहाँ से। जो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, ऑल इज वेल, उसको समझाना पड़ता है कि भैया टाइम इज लिमिटेड, ऑल इज वेल नहीं, टाइम इज लिमिटेड। तो समय आ गया है कि अब ये सब बंद करके स्विच किया जाए पढ़ाई में। और धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आपको आदत पड़ जाती है यूट्यूब, या मान लीजिए आपने बाइजू देख रहे हैं या आप कुछ देख रहे हैं और धीरे धीरे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो धीरे धीरे आपका जो पढ़ाई का और फिर डिस्ट्रैक्शन का समय धीरे धीरे घटने लगता है, मतलब समय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले आप 1 घंटे पढ़ते थे, आधे घंटे डिस्ट्रैक्ट होते थे, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो 2-3 घंटे अच्छे से बैठिए। मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ, एक जस्ट एज एन एग्जाम्पल बताऊंगा, हमारे घर में कभी एसी तो था नहीं, मैं सारे बंद कर देता हूँ पढ़ाई के समय में। पढ़ाई पूरी को कष्ट देकर होनी चाहिए, आराम से बेड पर पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। अभी मैं आप लोगों के साथ सेशन ले रहा हूँ, पंखे वगैरह, पढ़ाई का पसीना दिखना चाहिए, मेहनत का पसीना होता है वो। मैं बेड पर अगर रखता हूँ तो नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ाई किया हूँ। आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जितना डिफिकल्ट सिचुएशन उतना आपका बॉडी अडॉप्ट करता है। अगर आप आराम से बेड पर पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज अवॉइडेबल। वैसे पढ़ाई चाहिए, दिस इज समथिंग व्हाट आई फील। अगली बात कहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, खुद को समझाएं कि हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट करते हैं। अभी हम सभी घर पे हैं और हम लोग एक कप कॉफी अपने लिए, अपनी दीदी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए जरूर बनाएं। इनफैक्ट खाने में भी उनका हेल्प करें, खाना बनाने में। इज समथिंग विच वी शुड डू इट एज अ प्रैक्टिस, एज ए रेगुलर थिंग। द ओनली 2 हॉबीज दैट आई हैव इज कुकिंग एंड टीचिंग, बियॉन्ड दिस। और वो मैं दोनों को बहुत पैशनेटली करता हूँ, अपनी माँ को बहुत हेल्प करता हूँ इस चीज़ में। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है। कई लोगों के घर में काम करने वाले लोग होते हैं, जो आपके घर में बाई होती हैं, मान लीजिए, अगर ऐसे लोग हैं तो उनको अच्छा फील कराइए। आपके घर में कैसा चल रहा है, डू आस्क देम क्वेश्चंस। एजुकेशन का बेसिक पर्पस ये नहीं है कि किताब में तो आप टॉपर हैं और जब बाहर निकले किताबों के तो आप बहुत ही घटिया तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। यू मस्ट ट्रीट पीपल विद अ लॉट ऑफ लव एंड एम्पैथी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई खुद से, अगर आपके पास कपड़े हैं, ये भी प्रचलन बहुत गलत है, मैं आपको फिर से रिपीट, 2 चीज लाइफ में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इट इज माई पर्सनल ओपिनियन टू ऑल ऑफ यू। पहला, मेनी पीपल नाउ इट इज, स्पेशली आई यूज्ड टू सी इन मुंबई, कि आप अपना बर्थडे जाते हैं गरीब लोगों के साथ मनाने, आप ऑर्फन में जाके अपना बर्थडे मनाते हैं। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ना आप ये करिए, ना अपने पेरेंट्स को ये करने दीजिए। अगर आपको मनाना है, बट वी स्टार्टेड, आप उन बच्चों का बर्थडे मनाइए वहां जाके। इससे क्या होने लगा है धीरे धीरे कि यू स्टार्ट, उनको क्या लगता है, जो बच्चे होते हैं, हमने रियल एनालिसिस किया था, उन बच्चों को लगता है कि सर हमारे यहाँ तो रोज एक आदमी आता है, बर्थडे मनाता है, हमसे ताली बजवाता है, हमें समोसा खिलाता है, और वो ये सोच के चला जाता है कि हम बहुत बड़ा चैरिटी कर रहे हैं। बट उनको और भी खराब फील होता है कि उनका बर्थडे कोई नहीं मनाता है। इफ यू वांट टू डू रियल गुड थिंग फॉर द सोसाइटी, आप उनका जाके बर्थडे मनाइए, आप आगे बढ़िए। आप अपने बर्थडे को बाकी लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहते थे, अच्छी बात है, पर कहीं उसके चक्कर में आप दूसरों को गम तो नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताऊंगा, कई लोगों के घर में ये गलत प्रथा है कि हम अपने घर में जो लोग काम करते हैं, जो मान लीजिए बाई हैं या जो दीदी लोग हैं, उनको क्या करते हैं, मम्मी का या हमारा पुराना कपड़ा है उनको दे देते हैं और अच्छा फील करते हैं कि हमने कपड़ा दिया है। गलत बात है।
हर आदमी को शौक होता है कि उसको नया कपड़ा, अच्छा खाना मिले या बचा हुआ खाना देते हैं। यही आपका समय है, इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों से आप चेंज ला सकते हैं। आप अपने घर में चेंज लाइए, अपने अगल बगल में चेंज लाइए, ये सब चीजों को बिल्कुल रोकिए, आवाज उठाइए इसके लिए कि नहीं आप गलत कर रही है। हम नया टी शर्ट खरीदेंगे, 500 रुपए का एक टी शर्ट आता है, इट इज नॉट समथिंग दैट यू कांट अफोर्ड। अगर आप 2 कपड़ा देते तो आप एक ही कपड़ा दीजिए, और आप नया कपड़ा दीजिए अगर वैसे लोगों को देते हैं। और अगर पुराना कपड़ा भी देते हैं तो ऐसा दीजिए कि वो पहनने लायक कंडीशन में। सिर्फ अपना ये सोच के कि हम किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी को और खराब फील कराना, समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। उसके बाद कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी थी तो मैं बता देता हूँ कि यार हमारा फेवरेट मूवी जो हमारे समय में था, एक स्वदेश करके मूवी आई थी और एक बागबान करके मूवी आई थी। अगर आपको समय मिलेगा तो आप बागबान मूवी जरूर देखिएगा और 2-3 बार देखिएगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखिएगा। बाकी आपको उस मूवी से खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। मैं इंडिया के बाहर लंदन में भी रहा हूँ, लंदन में मैंने काफी समय बिताया एंड कई लोग जो हैं वो लंदन जाके बहुत खुश होते हैं और हमारा ड्रीम होता है कि हम इंडिया के बाहर सेटल कर जाएं। अगेन मैं यही बताऊंगा कि सब आदमी अलग अलग टाइप का होता है। जब मैं लंदन गया था मुझे वाकई स्वदेश मूवी से बहुत कोरिलेशन हुआ। कभी कभी यही लगता है कि हम लोग इतना पढ़ लिख के सिर्फ बाहर क्या कर रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ रियल में होता है। आप यहाँ बात करते हैं कि साफ सफाई नहीं है, तो आप साफ सफाई यहाँ क्यों नहीं लाते हैं? आप यहाँ क्यों चेंज नहीं करना चाहते हैं? आप ये तो वही बात हो गई कि घर में कचरा है तो मैं कचरा अगर साफ नहीं कर सकता हूँ तो दूसरे वाले बगल वाले के घर में जाके रह लेता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना चाहिए। हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें उस इकोसिस्टम को भी वापस करना चाहिए। मैंने अगर IIT से पढ़ाई की, मेरा अगर स्पॉन्सर किया गवर्नमेंट ने, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी फॉर्म में आप नौकरी करके उसे वापस करें। आप जब ग्रीजली से भी बाहर चल जाएंगे तो आज के समय में बहुत अच्छा एक स्टार्ट हुआ है, हर स्कूल का एलुमनाई एसोसिएशन बनता है। मैंने ये देखा है जवाहर नवोदय विद्यालय का बहुत अच्छा एलुमनाई एसोसिएशन होता है। वो लोग गरीब बच्चों को सपोर्ट करते हैं, आगे चल के उनको पढ़ाते हैं, उनको हेल्प करते हैं। रियूनियन होता है, मीट होता है। तो ये मीट सिर्फ चाय पकौड़ा खाने के लिए नहीं होता है। आप लोग जो मीट कर रहे हैं उसका कुछ डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए। अभी आप लोग इस समय में अपना छोटा छोटा सर्कल बना सकते हैं और ये ठान सकते हैं कि हाँ इस मोहल्ले में हम लोग ये चीजें देखते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं जो हमारे लेवल पे पॉसिबल है। हमारे घर में ये दिक्कत है, इसको हम खुद इंट्रोस्पेक्ट करके ठीक करना चाहेंगे। ये सारी चीज आपको करनी चाहिए। बुक्स जरूर पढ़िए, बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मोबाइल कम यूज करिए, ये आंखों के लिए बहुत गड़बड़ है। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज मत देखिए लेकिन न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि न्यूज काफी आजकल फैब्रिकेटेड होता है। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से एटलीस्ट एक आपको फ्लो पढ़ने का एक आदत लगता है। पढ़ाई की आदत बहुत जरूरी है। अपने आप को कभी अंडरस्टिमेट मत कीजिए। 13:51 हो गया है, मैं एग्जैक्ट 14 o'clock पे बंद कर दूंगा। अंडरस्टिमेट मत कीजिए कि मैं कोडरमा का हूँ तो मैं क्या करूंगा। दिल्ली का कोई मुंबई में कोई बड़ा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है, उसमें पढ़ रहा है, नहीं होना चाहिए। ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मूवी है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम करके, वो 2 मूवी आप जरूर देखिए। सर लेट इरफान खान की मूवी है, वो उसको देखिए, समझिए कि टैलेंट किसी में हो सकता है। आप अपना टैलेंट कम नहीं समझना है और कभी अपना टैलेंट बहुत ज्यादा नहीं समझना, दोनों से बचना है। बीच का जो मध्यस्थ पाथ होता है, जो तटस्थ होना, भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि मिडिल पाथ लीजिए। अगर कोई सरकारी स्कूल का बच्चा आपको दिखता है तो उसे कभी हीन भावना से मत देखिए, क्योंकि टैलेंट भगवान ने भाई ऐसे नहीं दिया है कि ग्रिजली के बच्चों को दिया 100 टैलेंट और सरकारी स्कूल में 50। कोई भी बच्चा कभी भी आउटडू कर सकता है और आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अपने हॉबीज को हमेशा पाल के रखिए। अगर आप पेंटिंग करते हैं जरूर पेंट कीजिए। यही चीजें हैं जो लाइफ में आपको आगे लेके जाएंगी। आप देखते होंगे डांस प्लस क्या क्या आजकल आता है, डांस इंडिया डांस, बहुत सारा आ गया, सुपर डांसर, तो काफी कुछ होता है जिसमें हम लोग अगर टैलेंटेड हैं और सिर्फ टैलेंट के बल पे लोगों ने अपना नाम कमाया है, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा लाइफ का सिर्फ एक उद्देश्य क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई आपका बैकबोन है, जैसे आपका शरीर है ना, उसका स्केलेटन है। बाकी हाथ पैर होने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो आपका हॉबीज होता है जो आपको आगे लेके जाता है। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगता है जो मैं अपने लिए बोलता हूँ कि आई लव टू डू द वर्क एंड आई डू द वर्क विच आई लव। उसी तरह से यू शुड लर्न टू ग्रो एंड यू शुड ग्रो टू लर्न। ठीक है, आपको ग्रो करना होगा लर्न करने के लिए, एंड यू शुड लर्न कि आप धीरे धीरे बड़े हों। तो दोनों चीजों का सामंजस्य बना के रखिए। कप ऑफ कॉफी मैंने बता ही दिया है, वैक्सीनेशन का बता ही दिया है। अभी आउटडोर गेम्स बंद भी हैं, तो कैरम, चेस, लूडो,
सुडोकू एक बहुत अच्छा चीज है। मेरे पिताजी और मैं दोनों रोज बैठ के पेपर में सुडोकू बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। तो इवन ही 60 ही मेक श्योर कि वो हर दिन आधा घंटा हम लोग 3-4 सुडोकू सॉल्व करते हैं, तो उससे हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है। तो ये सब चीजें करनी चाहिए, कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं वही एक चीज बताना चाह रहा था जो भूल गया था उस समय, कि जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं तो उनके लिए ताली कैसे बजाई जाती है, कोई जानता है क्या? स्कूल ने सिखाया है कि उनके लिए हम क्लैप कैसे करते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा ही नहीं था इस बारे में? आपको लगा ही नहीं कि कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं सुन सकते हैं? हम तो सुन सकते हैं, ये तो गॉड गिफ्ट है हमारा। एक नाक है, किसी का 2 आंख भी नहीं होता है। अरे ये सब में टाइम कहाँ मिलता है? आजकल कौन डोटा और क्या क्या गेम आ गया है, वो सब खेलने से, एज ऑफ एम्पायर, तो देखिए इस तरह से बजाया जाता है। उनको हम लोग बोलते हैं स्टार क्लैप बोलते हैं। जो भी अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको इस तरह से करना होता है, साइलेंट क्लैप या स्टार क्लैप बोलते हैं। आपने देखा होगा, एक बार तारे जमीन पे फिर से देखिएगा, आप देखिएगा कि कई बच्चों को वो इस तरह से करके दिखा रहे हैं, हाथ ऊपर करके ये किया जाता है। तो कई सारी चीजें होती हैं लाइफ में जो कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए लोगों को। मुझे नहीं पता आपका योगा सेशन होता होगा, आजकल स्कूल का लेवल भी बहुत बढ़ गया है, पर रोज ये चीज को ध्यान रखिए और ये चीज का थैंकफुल रहिए, आप जिंदा हैं। हमने अपने ऑफिस में लिख के रखा है कि मुस्कुराइए भाई, आप जिंदा हैं। समझे? सब कुछ परेशानी को फील करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका कि हर दिन कॉन्शियस ब्रीदिंग कीजिए, कॉन्शियस सांस लीजिए। एक बार ये सब चीजें ना हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लिए कि हमारा लाइफ, हमारा 2 पैर है। हर आदमी के पास नहीं होता है और हर आदमी इतना आसानी से नहीं जी रहा है। इन सब चीज के लिए सेंसिटिव बनिए। उसके बाद मोबाइल कम यूज करिए, टीवी कम यूज करिए। एटीट्यूड विल टेक यू फॉरवर्ड, नॉट एप्टीट्यूड। दिमाग के साथ साथ आपका एटीट्यूड टू लर्न होना चाहिए। 11th-12th क्लास में आपको क्या पढ़ना है मैं लास्ट में 1 मिनट बताऊंगा। और मेरा निकनेम है हार्ड वर्किंग ह्यूमन। तो मुझसे पूछा गया था कि इंटरव्यू में कि आप क्या है ऐसा जो क्वालिटीज जो आपको अच्छा लगता है, तो मैंने बोला सर मेरे पास एक ही स्किल्स है, मैं हार्ड वर्क करता हूँ। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं मैन, मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं मैन नहीं हूँ, मैं वुमेन नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। बीइंग ए ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग ट्रू ह्यूमन। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क से बहुत आगे ले जाता है आपको। तो आप हार्ड वर्क सीखिए, आप चीज़ों को बेसिक से स्टार्ट कीजिए और टीम तक लेके जाइए। चीज़ों को फिनिश करिए। कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें फ्रॉड नहीं करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, पूरा एफर्ट्स के साथ करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। देखिए हम लोग उस स्टेज पे हैं कि हम लोग चेंजेस ला सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब आप लोग अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ का एफर्ट नहीं करना चाहिए कि जितना आप पे इन्वेस्ट कर रहा है सोसाइटी, उतना आप सोसाइटी को रिटर्न करें। लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा कि +2 में 10th बोर्ड में एंग्जाइटी वगैरह जब आएगी बोर्ड एग्जाम से पहले, तो उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप बहुत मेहनत करके एग्जाम से पहले प्रिपेयर करके रहें। एंग्जियस ऐसा नहीं है, मैं ये भी सबको बताता हूँ कि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। मैं 10th में जाता था लिखने तो मुझे लगता था कि क्या पता मेरा आज क्या क्वेश्चन आ जाएगा, सब तो पढ़ लिया है, बाहर से क्वेश्चन आ जाए, क्लास में ये लगता था। लेकिन डर के आगे जीत है, ठीक है? तो जब जो डर से आगे डरा दिया वो बहुत आगे तक जाता है। आपको डर को डराना होगा। हिम्मत कहानी मैंने एक कविता लिखी थी मैंने, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। ये खेल तो बहुत पुराना है, तुम्हें अपने होने का ऋण चुकाना है। तो डर मत है मेरे वीर, उठा बाण और चला वीर, गया डर तो कठिन हो जाएगी तेरी ये डगर। हिम्मत जुटाना भी तुझे खुद, बाण चलाना भी तुझे खुद होगा। तो जैसे एक दीवानी थी वैसे तू भी एक दीवाना है। ये खेल तो बहुत पुराना है, तुम्हें अपने ऋण चुकाना है। तो ये समझ के रखिए कि हमें एक एग्जिस्टेंस, बर्थ मिला है, एक लाइफ मिला है, तो उसका हम अच्छा उपयोग करें। अच्छा चीज़ सीखें। खराब चीज़ सीखने में समय नहीं लगता, अच्छा चीज़ सीखने में बहुत समय लगता है। उसको ले जाके अच्छे से काम करें। 2 आखिरी चीज़ें बताऊंगा। पहली बात कि गलत संगत और गलत आदत नहीं डालें। ये आपके टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज तक अल्कोहल, सिगरेट ये सब नहीं पीता हूँ। These things should be completely avoided। जो लोग ये सब करते हैं, ये सब के चक्कर में आगे चल के कभी नहीं पड़ना चाहिए। You should always promise to yourself and to your parents. These are something which will take you forward. The simple reason being, if you drink alcohol, you waste 15% of your time in life. और मैं वही 15% बचाता हूँ और उसी में पढ़ाई करता हूँ। तो these things should always and always guide you। ये चीज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है।
दूसरा, आप जब भी काम कीजिए, आप काम को पूरा, जैसे एक ने पूछा आदित्य ने कि फोकस इन द वर्क कैसे आता है। फोकस तभी आता है जब आप उस काम को पैशनेटली करते हैं। पैशन जब तक नहीं रहता है काम में, आप भी पैशन होकर करते हैं। अभी आपका काम है पढ़ना, तो उसको पूरा पैशनेटली कीजिए। आज मुझे ये 4 चैप्टर खत्म करना है तो करना है, ये मैं नहीं करूंगा तो मैं काम नहीं करूंगा। तो मैं अपने आप को कैसे फोकस लाता था उसका भी ट्रिक बताता हूँ। मैं क्या करता था, बचपन से ये करता हूँ कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा तभी मुझे 15 मिनट का टीवी देखने को मिलेगा। इस टाइप से मैं करता था। या तब मेरी मम्मी मुझे अच्छा खाना बना के देगी, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करता था। या तब मैं पंखा चलाऊंगा। तो अपना एक मोटिवेटिंग फैक्टर रखिए। तब मैं दोस्त को 5 मिनट के लिए कॉल करूंगा। इस टाइप से करके रखना है। बाकी एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि सवाल से शुरू किया था, 2 मिनट है। तो लास्ट का सवाल ये है कि अच्छा ये बताइए, चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता है तार के ऊपर? करंट फ्लो करता है तो चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता है? कोई बोल भी सकते हैं माइक ऑफ करके, इसको टाइप करना मुश्किल है। So because it doesn't have blood in its legs. अरे नहीं भाई, ब्लड के लिए थोड़ी ना लगता है चिड़िया के पास। अगर वो अर्थिंग पे नहीं बैठती है, वो गर्म तार पे बैठती है। हाँ, बेसिकली जो करंट लगता है वो जब आपका अर्थिंग सर्किट कंप्लीट होता है तभी लगता है। अगर आप चप्पल पहन लेते हैं तो आपको भी करंट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये चीज को हम लोग को, ये सवाल मुझसे पूछा गया था इसलिए पूछा। एक और मुझसे 10th का सवाल पूछा गया था कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी डॉट 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 इंटू एक्स माइनस जेड क्या होगा? x का वैल्यू नहीं पता हमें। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी एक्स माइनस ए। हमने सवाल बनाया ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। x का वैल्यू पता रहता है, पर हमसे ये सवाल पूछा गया था कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी डॉट 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 इंटू एक्स माइनस जेड क्या होगा? इसका आंसर मैं दे देता हूँ, कहीं आपको कोई ट्रैप ना कर ले। इसका आंसर होगा 0, क्योंकि एक बार इसमें आएगा x माइनस यू इंटू एक्स माइनस वी इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एक्स। एक्स माइनस एक्स तो 0 हो जाएगा। एक्स माइनस जेड से पहले क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से पहले क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स आएगा। तो एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा। ये आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमसे फिरजी के इंटरव्यू में पूछा गया था, और इंटरव्यू के हिसाब से मुझे 100% स्कॉलरशिप मिला था। गनीमत है कि हमारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने इस तरह के सवाल मुझे बता दिए थे, कोई मेरे को भी बता दिया था। तो मैं भी उस इंटरव्यू में आपको एक फन स्टोरी बताऊंगा। मैंने बोला सर ये काफी ट्रिकी सवाल लग रहा है, मुझे आंसर पहले से पता था। तो अपने पत्ते कभी नहीं खोलने चाहिए लाइफ के। मैंने बोला अच्छा मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ। फिर मैंने उनके सामने सोचा, ओपनली सोचा, मुझे पता था कि इसका आंसर 0 आना है। उन्होंने पूछा था 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस है, तो मैंने बोला सर नॉट डिफाइंड आएगा, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ था। एक और बताइए कि पीएच नेगेटिव हो सकता है क्या? पीएच स्केल सबने पढ़ा होगा। वाटर का पीएच कितना होता है? 7 इज द राइट आंसर। तो पीएच 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, पीएच 7 से ज्यादा तो बेसिक होता है। पीएच नेगेटिव हो सकता है। ये सवाल भी हमसे केवीपीवाई के इंटरव्यू में पूछा गया था। अगर आप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनाते हैं तो उसका पीएच 0 के नीचे जा सकता है। ये सब गूगल किया कीजिए, ये सब थोड़ा सा देखा कीजिए। पीएच नेगेटिव इज पॉसिबल। पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में? कुछ नहीं डालते, छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं, चुपचाप लौट आते हैं कि एसिड को कौन छुएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी पुट H2SO4 इन वाटर। एसिड में कभी आप पानी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एसिड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इसमें भी आप लोगों ने सही आंसर दिया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री कितना होता है? राइट। तो मैंने ये सवाल ऐसे ही पूछा आपसे, रीजन में बता देता हूँ कि अचानक से कुछ पूछते पेरेंट्स के बारे में एक इंटरव्यू में पूछ दिया गया था, चाहिए बताओ tan 45। आपको अब बताना नहीं चाहिए उसमें। यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड। ये साइन कॉस हमेशा आपको याद रहना चाहिए। आखिरी, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है या वायलेट का वेवलेंथ?
The answer is right. I am very proud of these teachers and students. You have done fantastically well. The answer is red only. और रेड का इसलिए याद होता है, इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है कि दूर से जब भी कोई गाड़ी या कोई लाल कलर का ही रहता है तो इसको हम लोग पहले व्यूअर याद करते थे, फ्रीक्वेंसी, लेंथ। फिर हमें लगा कि इसका कोई आसान तरीका, तो हमारे टीचर ने बोला था कि देखो ट्रेन क्या होता है, लंबा होता है, तो ट्रेन में क्या होता है, दूर से लाल सिग्नल दिया जाता है, तो लेंथ और ट्रेन का याद रखना। तो जिसका ज्यादा लंबाई है ट्रेन का तो लाल सिग्नल देते हैं, तो इसका मतलब रेड है। लाल कपड़ा दिखाते हैं तो रेड दूर से दिखता है, इसलिए उसका वेवलेंथ ज्यादा है। उसी को बहुत सिंप्लीफाइड वे में करने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने 1 घंटे तक मुझे बियर किया। आई डोंट नो हाउ मच प्रोडक्टिव दिस सेशन वुड हैव बीन। हमने वो चीज आपको बताया जो हमने लाइव से सिखाया, किताबों से नहीं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो 5 मिनट के लिए तो आप पूछ सकते हैं। मैं जितना मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है मैं उससे आपको क्वेश्चन। एक लड़की पूछ रही थी, बच्ची हमसे, देखिए सुकांत जी, ये नहीं है कि कोई बाहर काम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। इन FDI, FII बहुत सारी चीजें होती है जिससे वो लौट जाती है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि बाहर ही रहना एक वो है। कई बार ये हो गया है, DDLJ देख के लोगों को लगता था कि इंडिया के बाहर ही सेटल करना है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया इज अ लवली कंट्री, और किसी भी लवली चीज में उसके डिफेक्ट्स होंगे, उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। मेरा स्ट्रीम था केमिकल इंजीनियरिंग। आई एम ए केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तब क्या करना चाहिए, ये एक अच्छा सवाल है। तो इंटरेस्ट जानने का तरीका होता है। तो सबसे पहले तो कई लोगों का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, आई डोंट नो व्हाई, पर मैथ्स और ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंटिन्यूअस रखना चाहिए। और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिर कुछ अपने दोस्तों के साथ उसमें ग्रुप स्टडी करना चाहिए। कोई ऐसा दोस्त हो जो उसको आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता सके, सब्जेक्ट को इजीली एक्सप्लेन कर सके। और जब तक उसको खींचना है तब तक तो जरूर खींचिए, जब तक लास्ट मोमेंट तक उसको छोड़ नहीं सकते हैं। यू शुड रीड योर सब्जेक्ट। मैं यार 3 से 4 घंटे रोज पढ़ता था और उसी में अच्छे से पढ़ता हूँ, आज भी वही करता हूँ। You should always give 3 to 4 hours every day in your studies. You should not leave things to later. एक्टिंग मैंने की नहीं है तो मैं कैरियर इन एक्टिंग को जान नहीं पाऊँ। ऑनलाइन क्लासेस डिफिकल्ट हैं, उसका एक तरीका है कि पंखा वंखा बंद करके ऑनलाइन क्लास करना चाहिए। एक डायरी और एक ये रखना चाहिए, जिससे कोई भी चीज हो तो उसको नोट्स बनाते रहना चाहिए। ठीक है, सेटिस्फैक्शन चैप्टर नहीं पढ़ के आ रहा है तो इसका कोई विकल्प नहीं है। चैप्टर पढ़ के किस तरह का आप सेटिस्फैक्शन चाह रहे हो सब्जेक्ट से, आई डोंट नो। 3-4 hours का रेगुलर स्टडी विल गिव यू अ गुड परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट इट शुड बी रेगुलर। आपको रोज खेलना चाहिए 1 घंटा। मैं बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलता, आज भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। बाकी जो क्वेश्चंस हैं एक्टिंग और IAS ऑफिसर, ये सब जब आप उस पेज में आइएगा तो हम उस पेज की बातें करेंगे। अभी इसी पेज का था। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ कि आप बाजार लेके 100 रुपए जाते हैं, आपको 20% डिस्काउंट देता है दुकान वाला। आप बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, ये तो 80 रुपए में हमें मिल रहा है सामान। डेयरी मिल्क मान लीजिए, आप उनसे बातचीत करके नेगोशिएट करते हैं कि सर 20% डिस्काउंट और दिलवा दीजिए हमें उस पर। तो बताइए कि आपके पास कितने पैसे बचते हैं। आई थिंक निकुंज अग्रवाल शुड बी गिवन 1 चॉकलेट। निकुंज का आंसर सही है। Sure. आई एम वेरी प्राउड ऑफ। सो बेसिकली ये डबल डिस्काउंट का क्वेश्चन था कि 100 रुपए का सामान अगर 80 रुपीज में मिलता है तो उस पर अगर आप 20% और डिस्काउंट करते हैं तो इट बिकम 64। तो आपके कितने पैसे बचे, मैंने यही बोला था। सवाल को ध्यान से पढ़िए और सुनिए एग्जाम में। कई लोग तो यही गलती करते हैं, कभी आता है विच इज नॉट द राइट आंसर और हम लोग राइट आंसर को टिक लगा के आते हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। आई एम वेरी प्राउड कि आप लोग ये सब चीजों को अच्छे से जान रहे हैं। तो these things these are the things which I just want to convey कि ये सब चीजों को याद रखिए। लास्ट बात मैं एक कहानी बताऊंगा अपनी IIT की। तो कई लोग 5.1 स्टोरी पढ़ रहे हैं, मैं तो 9.1 हूँ भाई। तो मैं 5.1 से कोरिलेट करता कि क्या है वो सही है कि नहीं। तो मेरे साथ
मैथ्स में हमेशा से टॉपर था, मैंने सब्जेक्ट लिया मैथ्स। थर्ड ईयर की बात की, आईआईटी में बहुत जबरदस्त ठंड पड़ा, सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, वहाँ 0 डिग्री में साइकिल चला के 1 किलोमीटर जाना होता था हॉस्टल से। 8 बजे से सुबह मैथ्स की क्लास होती थी वहाँ पे। जब दूसरा सेमेस्टर मैथ्स का हुआ और यू भी थे वहाँ पे, उन सब से मुझे ज्यादा नंबर आया। आई बिकेम वेरी, मैंने 3 बार A ग्रेड लाया मैथ्स में, हाईएस्ट मार्क्स इन इंस्टीट्यूट लाया। जब फोर्थ एक सब्जेक्ट मैंने इलेक्ट किया, आई वाज केमिकल इंजीनियरिंग, सो आई हैड टू इलेक्ट वन सब्जेक्ट, तो मैंने मैथ्स लिया, लीनियर अलजेब्रा। उस सब्जेक्ट में मैंने एक भी क्लास नहीं की, मैं सोता रहा, 8 से 9 आराम से सोता था। अटेंडेंस के नंबर चले गए मेरे। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सुपर कॉन्फिडेंट था कि मैथ्स है, ये तो मेरा मतलब बाएं हाथ का सब्जेक्ट है जिसको मैं कभी भी निकाल दूंगा। एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने एक लड़की के नोट्स लिए, देखा, खोला, मेरी हालत बहुत टाइट हो गई उस दिन। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है नोट्स में, एंड आई कुड बेयरली पास इन दैट सब्जेक्ट। मतलब मैं इतना घबरा गया, मैं रात भर नहीं सो पाया। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ कि मुझे नींद नहीं आ जाए, मैं किसी तरह कुछ नोट्स को पढ़ रहा हूँ, वहाँ भी मुझे नींद आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं वहाँ कॉफी पी रहा हूँ, फिर मैं कैंटीन में जा रहा हूँ, वहाँ नोट्स खोल रहा हूँ, फिर मैंने बंद किया नोट्स, फिर मैं रूम आ रहा हूँ, वहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर सोचा जितना पढ़ा है फेल होना है तो फेल ही होंगे, बंद करो। अब सोचा तो था रात भर पढ़ूंगा, आंख लग गई, सुबह उठा, 5 क्वेश्चन के जवाब देके आया। Fortunately, all 5 were correct out of 10. First time in my life, I did not know even कि 5 क्वेश्चन और क्या पूछे गए। मुझे बस 5 ही क्वेश्चन आता था, 5 में मेरे सही हुए। मैं किसी तरह D ग्रेड लाया। D ग्रेड इज जस्ट above F. F मतलब फेल होता है। Then I realized it is not that hard to fail. मतलब मुझे पहले लगता कि फेल क्यों हो जाते हैं। Then I understood कि फेल कोई भी हो सकता है। अगर आप सुपर घमंडी हो जाते हैं, then you will always fail in life. देन आई रियलाइज कि कितना डर लगता है जब फेल होने वाला लगता है। मतलब मुझे ये लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊंगा। उस सेमेस्टर में मेरे सारे सब्जेक्ट में A ग्रेड और मैथ्स में D। देन आई रियलाइज नथिंग शुड बी टेकन एज ग्रांटेड। देन आई रियलाइज कि 8 बजे उठना कितना जरूरी था। देन आई रियलाइज कि टीचर की क्लास करना कितना जरूरी था। देन आई रियलाइज कि मैं टॉप क्यों करता था, क्योंकि मैं हर क्लास को ध्यान से सुनता था। तो 50% चीजें तो मुझे क्लास से ही समझ में आ जाती थी। देन आई रियलाइज कि अपने नोट्स होते हैं। देन आई रियलाइज कि किसी दूसरे का नोट्स लास्ट में कुछ नहीं समझ में आता है। सो मेरा आप लोगों से यही सजेशन है, और ये हमेशा कंटिन्यूटी रखिए। लास्ट डे कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं जो खींच देते हैं, पढ़ लेते हैं। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं, झारखंड वाले। हम लोगों को हमेशा एफर्ट डालना पड़ता है और हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। और प्रॉमिस कीजिए कि मैंने आप लोग को जो प्लांटेशन का बताया है उसको आप अच्छे से करेंगे। I hope you will, and definitely will make Koderma much greener than how it is today. Thank you so much. It was wonderful connecting with all of you. और thanks प्रकाश जी. Thank you, sir. Thanks a lot. Abhijit. Thank you, sir, for this wonderful session. Now I would request our Student Service Cell Coordinator Sudhanshu Kumar, sir, to present the vote of thanks. Yeah, thank you very much, Abhijit. Sir, the way you have हमारे बच्चों को जिस तरीके से आपने बताया, विद्यार्थी पंच लक्षणम, अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो विद्यार्थी पंच लक्षणम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। So honorable sir, we are grateful to you for your coming up, with such a lovely motivational session. It has been a goosebump session, a session that has lit the fire in every one of us. Learn to grow, grow to learn, be empathetic, respect your parents. मुस्कुराइए भाई, आप जिंदा हैं. Attitude will take you forward in your life. Sir, ये बातें when it is spoken from a person of your stature, तो ये बातें दिल में अंदर तक चली जाती हैं. Sir, thank you for this time of yours that has driven our students to use time consciously and become more focused. Sir, it will be memorable session for each one of us, and we will always look forward for your such blessings in future. Sir, on behalf of entire Grizzly fraternity, I would like to propose a vote of thanks to you for your time. We will always remember, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you so much, all of you. It was wonderful connecting, and enjoy your vacations.
एंड हैव अ लवली टाइम, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड अच्छा अच्छा खाना खाइए, खाना बनाइए, पढ़ाई कीजिए और मौसम को एंजॉय कीजिए। इट इज वंडरफुल आउटसाइड। ठीक है, चलिए। Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, students. With this, we come to the end of our session. Now, I would request you to please leave the meeting. I would request Rajiv sir to please turn off the recording.